Hello everyone. In the last videos we have started the chapter arithmetic progressions AP. We have seen the definition of an AP. A sequence which increases or decreases by a constant means a sequence in which the difference between two consecutive terms remains same always. That type of sequence is called an AP. After that we have done about the nth term of an AP, right? So there is one question left for the discussion. That was question number 1 of exercise 5.1. Today we are going to discuss that. What is this question? These are statement sums, and in this case we are asked in which of the following situation, I am talking about question number 1 of exercise 5.1. तो बेसिक सीक्वेंस पूछी है कि ये एपी है या नहीं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई. सारे स्टेटमेंट सम्स हैं. वन बाय वन वील डिस्कस इट. द फर्स्ट वन, ही सेज टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. नाउ फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर that is given ₹15 and ₹8 for each additional kilometer. अब each additional kilometer के लिए ₹8 प्लस होता जाएगा. So fare for first kilometer ₹15, fare for second, fare for 2 kilometers rather, not second, 2 kilometers. 15 1 का था प्लस 8 हो गया. 15 प्लस 8 23 rupees. Now fare for 3 kilometers plus 8 होता जाएगा. And remember a sequence which increases by a constant. सभी टर्म्स में फर्स्ट में 8 ऐड हुआ, सेकंड बनी, सेकंड में 8 ऐड हुआ, थर्ड बनी, ऐसे ही थर्ड में 8 ऐड होगा, फोर्थ बनेगी, एंड सो ऑन. मीन्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस इज सेम. Hence the above sequence, therefore the sequence बना लेना पहले. फर्स्ट टर्म क्या है? 15, 23, 31 प्लस 8 एक और ले लें 39 एंड सो ऑन इज एन AP. Why? Because difference between consecutive terms remains same. Otherwise आप ऐसा भी कर सकते हैं, A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3. ये टर्म्स का डिफरेंस निकाल के 23 minus 15 8, 31 minus 23 8 and 39 minus 31 that is 8. Consecutive terms का difference same, hence the sequence is called an AP. Now we'll take second part of the first question. Question is the amount of air present in a cylinder. Cylinder में कुछ air present है. When a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. तो इसका हमने चेक करना है कि AP है या नहीं. सबसे पहले अज्यूम कर लें कि उसमें एयर है कितनी. We'll assume let the amount of air in the cylinder is, initially amount of air in the cylinder is X. यूनिट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. Let amount of air in the cylinder, say it is equal to X. With each stroke of the vacuum pump, how much air is pumped out? 1/4 of the air present in the cylinder. Now air pumped out in each stroke of vacuum pump, we are given 1/4 of the air present in the cylinder, that is X. So therefore what is the amount of air left in the cylinder? So therefore amount of air left after first stroke of the vacuum pump थी कितनी? It was X. How much is pumped out? 1/4x. What is it? 3/4x. Initially the air was X. Now after first stroke 3/4x. एक और निकाल लेते हैं. Now amount of air present in the, amount of air left कर देते हैं, सीधा निकालते हैं. Left after second stroke
ऑफ दैट वैक्यूम पंप थी कितनी वहां पे, अब कितनी है एयर, 3/4x। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। उसमें से निकाली कितनी वैक्यूम पंप ने, उसमें से जितनी थी उसका 1/4, इतनी थी इसका 1/4 वो निकाल देगा। तो अब कितनी बचती है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3/16 x, 16 एलसीएम, 3 3 are 9x minus 3x, that is this is 4 3s are 12। ठीक है, 12x minus 3x, that is 9x over 16, right। अब यहाँ पे the amount of air left in the that cylinder after second stroke, it is 9x over 16। Initially how much it was, x, after first stroke 3/4x, after second stroke 9x over 16। सीक्वेंस लिख दें पहले इसकी, फिर उसको चेक करते हैं कि ये AP है या नहीं है। मैंने इसकी सिर्फ 3 टर्म्स ही निकाली है। नाउ द सीक्वेंस ऑफ amount of air in cylinder, initially it was x, after first stroke कितनी बचती है, 3/4x, after second stroke कितनी बचती है, 9x over 16 and so on। ठीक है, ये चेक करना है कि ये AP है या नहीं। दो डिफरेंस निकाल लेते हैं। 3/4x minus x, 4, 3x minus 4x minus x over 4। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। नाउ ये जो डिफरेंस आएगा ये नेगेटिव आएगा, वाई, बिकॉज ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, टर्म्स कम हो रही हैं इसलिए नेगेटिव आता है, हमेशा इतना याद रखना। 9x over 16 minus 3/4x, 16 LCM 9x, 4 3s are 12 minus 3x over 16। देखना जरा, आर द टू डिफरेंसेस सेम, नहीं है। सो एज A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, therefore the above sequence is not an AP, right? Now we'll take third part of first question. Question is the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meters। Remember जो digging की cost है, हमेशा जैसे जैसे जितनी ज़्यादा डीप डिगिंग करनी होती है कॉस्ट सेम नहीं रहती डिगिंग की, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डेप्थ, क्योंकि जैसे जैसे जितना ज़्यादा डीप हम जाते जाएंगे अर्थ में वहाँ पे डिगिंग थोड़ी टफ होती जाती है। इसलिए जितना जैसे पर मीटर की उनकी डिगिंग की कॉस्ट होती है, फर्स्ट मीटर का अलग होगा, सेकंड का अलग होगा, थर्ड का अलग, वही इसने दिया है। ही सेड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेयर इट कॉस्ट रुपीज़ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट से वैसे बहुत क्लियर है ये, डिगिंग फर्स्ट मीटर दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 150 एंड उसके बाद बोला है इंक्रीजेज बाय रुपीज़ 50 फॉर द सब्सिक्वेंट मीटर्स। सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द सेकेंड मीटर, आई एम नॉट सेइंग 2 meters, फॉर द सेकेंड मीटर, सेकेंड 1 meter इट वॉज 150 फॉर द फर्स्ट और 50 उसमें ऐड हुआ है एज इट इज गिवन। 150 प्लस 50 कितना हुआ जी, 200। ये तो वैसे इस सीक्वेंस को आप देख के भी बता सकते हैं कि ऑब्वियसली एपी बनती नजर आ रही है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द थर्ड मीटर 200 प्लस 50 50 इंक्रीज हो रहा है, सेम इंक्रीज हो रहा है, हैंस ऑब्वियसली फॉर द फोर्थ मीटर एपी बन रही है ये, हाउ मच इट इज, रुपीज़ 300। ठीक है, द सीक्वेंस सो फॉर्म्ड, द सीक्वेंस सो फॉर्म्ड, फर्स्ट टर्म क्या थी 150, सेकेंड 200, थर्ड 250, फोर्थ 300 एंड सो ऑन।
ठीक है, ये पर मीटर की अलग अलग कॉस्ट ऑफ डिगिंग है, फर्स्ट मीटर की, ये सेकंड मीटर की, ये थर्ड मीटर की, ये फोर्थ मीटर की. सो देयरफॉर ऑब्वियसली यू कैन इजीली सी, सो A2 माइनस A1, 200 माइनस फॉर्मेलिटी करनी है तो दिस वे, A3 माइनस A2, 250 माइनस 200 दैट इज 50, एंड A4 माइनस A3, 300 माइनस 250 दैट इज 50. Consecutive terms में difference same, hence the conclusion is the given sequence, the sequence so formed is an AP. Now we'll take the last fourth part. It is the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum. ठीक है, प्रिंसिपल इज गिवन हियर रुपीज 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T टाइम. प्रिंसिपल P, ठीक है, रेट R, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट. सो अमाउंट का पूछा है इसने, लेट्स फाइंड आफ्टर 1 ईयर. Amount after initial it was 10,000, after 1 year, after 1 year, 1 year means time is 1, तो t की जगह 1 डलेगा. P is 10,000, 1 plus R is 8 over 100, T 1, right? So ये कट रहा है, 4 2s are 4 25s. So finally inside the bracket 25 plus 2 27 upon 25, ठीक है, रेज टू पावर 1. इसको ऐसे रहने देना, कैलकुलेट मत करना, ठीक है, इसको रेज टू पावर 1. दिस इज द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर. अब अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स निकाल लेते हैं. अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, बस फॉर्मूला में t की जगह पे 2 डलेगा. प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस R 8 over 100 एंड टाइम इज 2 नाउ. सेम वे कैंसिल हुआ, 10,000 इंटू 25 प्लस 2 27 अपॉन 25 स्क्वायर. ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना आपने, इसको इसी फॉर्म में रहने देना, ठीक है, क्योंकि हमें जो चाहिए, जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो वैसे भी प्रिंसिपल हर ईयर चेंज होता रहेगा, तो वो कांस्टेंट डिफरेंस नहीं बनता उसमें. तो 3 आ गए हमारे पास, इनिशियल अमाउंट आ गया, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर आ गया, आफ्टर 2 ईयर आ गया. सो सीक्वेंस ऑफ अमाउंट, फर्स्ट इनिशियल अमाउंट क्या था 10,000, बस 3 काफ़ी हैं क्योंकि यहीं से हमारा कंक्लूजन डिडक्ट हो जाएगा. 10,000 इंटू 27 अपॉन 25. इसको मैंने काटा नहीं है, कट सकता है बड़े आराम से, बाद में देखते हैं जब हमने कैलकुलेशंस करना है. 10,000 इंटू 27 अपॉन 25 स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट. नाउ डिफरेंस कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का सेम है तो AP होगी, नहीं है तो AP नहीं होगी. A2 माइनस A1, 10,000 इंटू 27 अपॉन 25 माइनस 10,000. इसको मैंने जानबूझ के नहीं काटा था, देखो 10,000 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 27 अपॉन 25 माइनस 1, सो 10,000 27 minus 25 upon 25, so that is 10,000 into 2 upon 25. इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है, ये 25 इससे कट जाएगा, ज़रूरत नहीं है काटने की, कि जो हमने ऑब्जर्व करना है वो वैसे ही हो जाएगा. सेकेंड डिफरेंस निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, दैट वॉज थर्ड टर्म, 10,000 इंटू 27 अपॉन 25 स्क्वायर माइनस 10,000 इंटू 27 अपॉन 25. सो 10,000 कॉमन देखो, इंटू 27 अपॉन 25, ये कॉमन आ गया. अंदर क्या बचा, 27 अपॉन 25, एक बच गया, ये तो पूरी टर्म बाहर थी, माइनस
1. 10,000 into 27 upon 25 into 27 minus 25 2 upon 25. कैंसिल कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, अब देखना ज़रा ध्यान से। फर्स्ट डिफरेंस ये था 10,000 into 2 upon 25. सेकेंड डिफरेंस 10,000 into 2 upon 25 तो है, लेकिन साथ में एक और टर्म भी है। क्या ये सेम है? ऑब्वियसली नॉट। सो हियर A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. So therefore the above sequence is not an AP. So this was about question number 1 of this worksheet. Thank you.